Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the RB paid live mock test number 5. As we all know that I started the series of attempting the paid mock of RBE which I have purchased just recently. So I am attempting the mock number 5 of this particular series, and I have already attempted the first 4 of the particular series and also uploaded the videos of this. You can check out in the playlist section. So you guys also attempt this particular mock test if you have the test series, and if you don't have, then do no worries. You can attempt through the video by you can attempt the question by the particular video. And if you stuck on any of the question, then comment the question number so I can tell you the solution of this particular question. So let's start this particular mock test and see how it goes. And subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video, and like the video and share the video. Okay, then let's go to this. First we go general. Man moved from the food gathering to food processing in which period? Food gathering, hunter gatherer from Neolithic, Neolithic. Next. Kalamadam Kalyani Kutti Amma. Okay. एक कथकली से रिलेटेड है. Distance of stars are measured in light year. Distance cosmic kilometer, galactic cosmic kilometer, solar mile हो गया या फिर galactic ना, तो लाइट ईयर तो है नहीं. सेलर मील ये टाइम की है, ठीक है. ये टॉप लॉक किलोमीटर, सेलर मील. सेलर माइल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग, नहीं मालूम. सिक्किम वाज मैन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द 36th अमेंडमेंट. नेक्स्ट. 35 यूनियन में किया गया तो स्टेट का दर्जा 36 से दिया था, ठीक है. वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर. 28 सितंबर ये कंफर्म नहीं है, छोड़ दो इसको. 28 सितंबर वैसे आंसर है जहाँ तक मुझे लग रहा है. व्हाट इज वेयर इज द सेंटर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन लोकेटेड? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई. आई थिंक चेन्नई है इसका आंसर. एटॉमिक एनर्जी का बेंगलोर तो है नहीं, लेकिन कंफर्म नहीं है तो छोड़ दो. साहित्य अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन बियर, नहीं मालूम. डांस फॉर्म चक्री रिलेटेड टू विच स्टेट, नहीं मालूम. डांस फॉर्म को याद ही नहीं किया अभी मैंने, मतलब पिछले साल किया था जब प्लेलिस्ट दिया था, तब से अभी तक रिवाइज नहीं किया था. फर्स्ट हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन द पब्लिक क्लस्टर इन 1960 इज एट 1960 में दुर्गापुर. बस नहीं, दुर्गापुर होगा फिर तो. व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? विमल किशोर, मनोज सोनी, राजभार सिंह, विमल किशोर, सुरेंद्र पाठक, नहीं मालूम. फर्स्ट T20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, नहीं मालूम. संतोष ट्रॉफी, सतीश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है. नहीं, संतोष ट्रॉफी तो इससे हॉकी से रिलेटेड है. नेक्स्ट. अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोस्ट बैक्टीरिया फंगाई. In how many countries did Megasthenes divided the Indus into 7? Next. Which of the following element is not a radioactive? Okay, radium, plutonium, uranium, zirconium. रेडियम तो है, जिरकोनियम भी है और यूरेनियम भी. प्लूटोनियम नहीं है मेरे हिसाब से. एक सेकेंड. रेडियम, जिरकोनियम, यूरेनियम, जर्कोनियम, जेडार, प्लूटोनियम, पीटी. प्लूटोनियम नहीं है मेरे हिसाब से जहाँ तक. Okay, as per the data of this data on or space sizes, which of the following is arranged? Okay, तो देखो सबसे छोटा होता है केबी, फिर एमबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी. ये सही है. अगला. The periodic movement of the sea water is known as waves. Periodic waves. Current नहीं. Sea water, current. The vitamin which is soluble, got WBC, water से B और C soluble. B और C, तो C आंसर है इसका. अगला. Largest flower found in the world? Victoria, Emerald, Trichosia, Rafflesia, नहीं मालूम. Glacier always melt at the top surface first. टॉप पे थोड़ी, सबसे पहले नीचे वाले खिसकेंगे.
bottom surface, bottom. 49th parallel is the boundary between which, नहीं मालूम. What is the greatest division year in the history of the population? 1971, 1951, 1921 आंसर है. अगला. Right to property was removed from the list of the fundamental rights during the rule of Indira Gandhi. 42nd Amendment Act. Indira Gandhi. The state of Jhansi was made a part of the British Empire in India through the doctrine of left. हड़प नीति. ओके, ये हो गया. 16 सवाल किए मैंने इसमें. ठीक है, आ जाओ इंग्लिश में. Rahul said to me, how did you persuade my brother? Rahul asked me, okay, how I had persuaded his brother. ठीक है. Choose the impromptu, defalcate, alleviate स्पेलिंग ये गलत लिखा है. ALLE लिखा होना चाहिए. गलत हो गया. Thoroughly, THOROUGHLY, ROU, thorough, ये सही है. Thoroughly. अगला. Next. Teacher prevented the boys to go there. The teacher prevented the boys to go there. Okay. The teacher prevented the boys to go there. It's a teacher prevented whom? The boys. ठीक है. Teacher prevented the teacher had prevented the boys to go there. Teacher had prevented. Teacher had होना चाहिए ना. नहीं, teacher prevented the boys to go there. Had होना चाहिए. Teacher had prevented. A cuckoo in the nest. One who likes to stay at home. नहीं. One who is chosen as the leader of the group. नहीं. A view from the high place or an unwelcome intruder. Cuckoo तो यही है. Unwelcome intruder. Next. Thus, I went out to play. Having completed my work, I went out to play. एक सेकंड में यार, ये वाला सवाल यार नहीं, ये वाला नहीं है. The teacher prevented of या कुछ लगेगा of the boys to go there. Prevented, ठीक है, ये सही है. Next अगला. He is dash rich, yet he is about high taxes. Yet he complains. He is very rich. ठीक है. Yet he complains about the high taxes. Next. Fearless, encourage, wet, fearful. तो फिर भी यही होगा. He felt the humiliation of withdrawing his words. Humiliation. Take down. Cheapen, abase, aggrandize. Aggrandize मतलब बड़ा करना. बड़ा करके. Humiliation मतलब छोटा दिखाना. ठीक है. To make a long story cut, to disclose, not to describe event, to be precise and avoid giving the details. सही है. अरे सही कहा ये. Save and next. Technology plays an indispensable role in the lives of the human being in the 21st century. Integral, basic, essential, needless. Basic, indispensable. Indispensable मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता, बहुत ही needy. अब needless आंसर हो जाएगा. ठीक है. Requisite, vital, unneeded, inessential, favor, vital. Next. He had already sent me the message that his arrival was scheduled for Thursday. I had already been informed. I had already been sent the message by him that his arrival was scheduled for Thursday. सही है. Robin and Ronit were small boys, so they often ran into the trouble. They were neighbors and went to the school. So on their school, they did all the things that not. ठीक है. तो PRSQ. Next क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, Benia saw me coming to her table. She smiled and dashed me a chair and offered me a chair. Pushed me a chair. Handed me a chair, saying offered. Robin said that he listened to the leader sing. He has listened. Robin said that he had नहीं आएगा.
He will listen the song. नहीं, he had listened to the song. He was developed he was developed into the most effective personality under the environment of the rational attitude of his father and religious temperament of his mother. ठीक है. Swami Vivekananda was born in Calcutta on 20 January in 1863 during the Makara Sankranti festival in a traditional Bengali Kayati Kesta family. तो क्यू से शुरू होगा सबसे पहले तो. क्यू से 2 ही ऑप्शन सही है. ठीक है. The birth name of the Swami Vivekananda was Narendra Datta. He was one of the 9 children of his father who was an attorney in Calcutta. He was developed into the P सबसे लास्ट में आएगा. अब पी देखो कि सबसे लास्ट में किस में है. ठीक है, इन दोनों में है. तो ही वॉज वन ऑफ द 9 चिल्ड्रन. ठीक है. क्यू एस आर से शुरू होगा. क्यू एस आर पी. ही वॉज वन ऑफ द लास्ट. ठीक है. ये दे वेलकम द गुड न्यूज मोस्ट जॉयफुल with not most joyfully with most joyfulness. नहीं, मोस्ट है तो अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए. या एडवर्ब के ऊपर एडवर्ब. दे वेलकम द गुड न्यूज मोस्ट जॉइंगली जॉयनस मोस्ट जॉयफुली. नेक्स्ट. अ सीवियर मेंटल डिजीज साइकियोसिस साइको साइकिक साइकी नहीं साइकोसिस. अरे क्या कर रहा हूँ मैं. अच्छा, वो नए पैटर्न को ये 7 नेक्स्ट बार लगा देता हूँ. ऑल द स्टोरी बुक्स वर सोल्ड बाय द सेलर sold all the storybook. Next. It is very easy to have bad habits such as eating too many sweets or too much food or too much fluid of any kind or smoking. The more we do a thing, the more we tend to doing it. And if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against. It is very easy to acquire bad habits. Acquire. Reject. Very easy to acquire bad habits. ठीक है. Such as this or drinking eating too many sweets or too much food or eating or drinking too much fluid of any kind or smoking. The more we do, the more we tend to like doing it, and if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against. Things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful when they are done or too often. When do समझना. Things may be very good when only done यहाँ है तो यहाँ भी done आएगा. Tend to become very helpful when done too often. Done. Next. When done too often. उसके बाद क्या है? Too often. एक second. When too often and too much. This applies even to such good things as work or rest. Some people form a bad habit of working too much and others of idling too much. The wise man always remembers that this is true about himself and checking any bad habit. The wise man always remembers that this is true about himself and keeps and checks any bad habit. This is true. Checks of any bad habit. He says so himself, I am not becoming idle, or I like too many sweets, or I smoke too much. Then adds, I will get myself out of this bad habit. ठीक है. तो इसने क्या बोला? The wise man always remembers that this is true about himself, and checks any bad habit. Checks any bad habit. He says to himself, I am not becoming idle, or I like too many sweets, or I smoke too much, and then adds, I will get myself out of this bad habit. Rarely at once. Finally, I will get out of this bad habit at once. Finally, I will एक बार at once. I will get myself out of this bad habit. Rarely नहीं, ये तो होगा नहीं. Finally, at last, finally. He says to himself, I am not becoming idle,
or I like too many sweets, or I smoke too much, then it's I will get myself out of this bad habit. फाइनली फाइनली लग रहा है मेरे को तो। बाकी मार्क को रिव्यू कर देते हैं बाद में इसके बाद समय निकालेंगे। अब आ जाए इस पे। जनरल अवेयरनेस में कितने किए मैंने? 16। इंग्लिश में कितने किए? 25 किए हैं। चलो इधर आ जाओ। पांडा, बम्बू, कोला। कोला किस में रहता है? कोआला, कोआला घास में रहता है। मछली, तो मछली तो कटा दो। छाल, यूकेलिप्टस घास। देखो पांडा तो बांस खाता है। पांडा बैम्बू, ठीक है। कोआला ग्रास में, पता नहीं, छोड़ो इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम फिंगर्स आर टोज। हाँ, क्या बोल रहा है? सम फिंगर्स आर टोज, ठीक है। एंड सम टोज आर रिंग्स, ठीक है। एंड सम रिंग्स आर हैंड्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन देख लो क्या बन रहा है। कंक्लूजन है सम हैंड्स आर टोज नहीं कह सकते। सम रिंग्स आर फिंगर्स नहीं कह सकते। सम हैंड्स आर फिंगर्स नहीं कह सकते। और क्या बोलते हैं? सम फिंगर्स आर रिंग्स, सम फिंगर्स आर रिंग नहीं कह सकते। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच विल बी करेक्ट? क्रॉस और डिवाइड। क्रॉस और डिवाइड और 7 और 9। अच्छा, डिवाइड को अगर इधर लेके भी आ गए तो क्रॉस 8 चौक 48, 16 आ गया, ठीक। और 7 यहाँ रख दिए, प्लस प्लस 7 माइनस 9। तो यहाँ से क्या आएगा? 16, 7 माइनस का 2, 14 आना चाहिए। तो पहला भी वाला करेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? प्लस और माइनस को बराबर अलग करना है। नॉन सा करेक्ट नहीं होगा, ओके। कौन सा करेक्ट नहीं होगा? तो पहले 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 और प्लस 9, 12 4 16, ये तो करेक्ट हो जाएगा। इसको रखो इधर। 3 माइनस 4, एक सेकंड ना, 1 से इसको डिवाइड करो, 5 में 10, प्लस का 10 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 9, ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला करेक्ट हो गया। 3 दूनी 6, 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 10, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट इमेज। देखो पहली चीज़ तो ये नीचे क्यू, ये डी कैसे बन गया? ये गलत हो गया। ये क्यू कैसे गलत हो? क्यू बनेगा। ये बी कैसे बन गया? ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। सीधा एक ही आंसर। अगला क्वेश्चन। IRMT 18 2 20, ठीक है। 11 2 13, ठीक है। 2 ये गलत हो गया। 4 2 6, यहाँ गलत हो गया, ये सही है। -5, 26 2 28, 28 नहीं, 26 2 28, 28 -4। पी के, पी का उल्टा के, आई का उल्टा आर, आर माइनस के, माइनस कितना? के प्लस 7, प्लस 7, 18, 18 2 20, 9 4 13, 16 3 19, 16 3 19, 25, और ये कितना है? 23। नहीं, डी डब्ल्यू करेक्ट है। डी 2 6, एफ और 6 और 4 10, और 11 11 11 और 4 13 और 4 13 और 5 19, 13 और 6 19, 6 और 6 12, 20, 20 और 6 18 से 26। एक सेकंड रुकना। 9 18 13 20 करेक्ट। इसमें 11 16 11 19 13, 11 तो 13, 18 तो 20, प्लस 2 नहीं आया ना, यही सही है। अगला क्वेश्चन। बाकी इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देखेंगे। हीरो 8 2 10, 6 2 8, 4 2 6, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। 5 2 7, 12 2 14 और 9 2 11, ये सही है। अगला क्वेश्चन। एक्सप्लोजन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ओके। न्यू में उसके बाद न्यू में आर, आर बना रहना था। आईकल ओके। ऐसे इसमें स्कैट है, ओके। स्कैट, स्कैट इधर आ गया और ई रेड इधर आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? एक्सपीएल, एक्सपीएल ओ, वो बीच में गया। SION, SION, ठीक है। SION EXPL, EXPL। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अपन 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, ये गलत हो गया। ऑल ARD, ऑल ARD एंड नो DEZ,
तो नो ई इज ए, नो ई इज ए, हाँ सही है। ऑल डी आर ए नहीं कह सकते, ऑल ई आर डी नहीं कह सकते, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? दिस shows that P is the aunt of Q. P is the aunt of Q. P cross P divided by मतलब P is the sister of R और R minus 2. R is the mother. हाँ तो ये बन सकता है P plus R. P is the father of R. हाँ गलत हो जाएगा। R divided by R is the sister of P और P minus P is the mother of Q. यहाँ से भी बन सकता है। अब फिर तो ये गड़बड़ हो गया यार। नहीं आप Q पूछा है ना? हाँ P यहाँ तो P गलत हो गया। ठीक है P minus R से तो ये गलत हो गया। P is the mother of our aunt. पहला वाला सही है। Select the option in which the given figure is embedded. ठीक है ये गया ये गया ये गया ये गया, यहाँ भी नहीं बनेगा। ये बन गया यहाँ पे, यहाँ बनना है यहाँ। वेल ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड करोगे तो ये चार तरीके से कटेगा। ये गलत हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा सीधा हो गया, उल्टा 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 हो गया, दोनों उल्टा सीधा आएगा। ये भी गलत हो गया, उल्टा सीधा। थर्ड ऑप्शन एक ही बार बना गया। अगला क्वेश्चन क्या है? दो में कितना ऐड किया? दो, दो में दो ऐड किया, दो में दो ऐड किया, चार में छः ऐड किया, इसमें 18 ऐड किया, इसमें कितना किया? 18। तो दो तीन छः, छः तीन 18, 18 3 54, 54 जरा ऐड करना है इसमें। 54 और 8 28, 8 4 12, 5 2 7 1 82। ठीक है अब इसमें कितना आएगा? इंटू 82 और 244 के बीच में डिफरेंस क्या है? 4 में से 2 गई, 24 में से 8 गई, 16, 162। हाँ सही है 244 और 82, 82 आंसर। अगला क्वेश्चन ए, एक ए में कितना ऐड किया? 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 मतलब सी। ठीक है सी से शुरू होगा। दो, दो और 5 7, 7 5 12, 12 7 5 17, 17 5 22, 17 5 22 मतलब वी, सी वी आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 5 4 9, 8 5 13। ठीक है 3 दूनी 6, 6 6 12 करेक्ट। 4 दूनी 8, 8 3 11 गलत। 10 6 16 गलत। 14 3 17 गलत। अगला क्वेश्चन 10 7 17 ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए में कितना ऐड किया? 5 6, 6 में 5 11, नहीं 11 नहीं 19 में कितना ऐड किया मैंने? 19 में 7 26, नहीं 19 8, 19 में अगर 8 ऐड किया तो 7, 19 माइनस 7 12, 12 6 और 6 12, तो 12 मतलब एल। ठीक है एल आ गया। इसका बी, 2 प्लस 5 7, 7 7 6 7 6 13, 13 13 7 20, 7 6 13, 13 मतलब एल एम। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन ओके, दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में एल ए एल ए एल ए एल ए एल ए एल। ठीक है एल ए यू एल ए यू एल ए यू। तो सबसे पहले तो 2 और 4 में से कोई आएगा। अब 2 और 4 में से भी कौन आएगा वो देख लो एक बार। 4 आएगा, सबसे 4 आएगा, 2 आएगा। 4 2 सबसे पहले 4 2। ठीक है 4 2 के बाद 5 3 में देख लो कौन सा बड़ा आएगा। लॉर्डे बेल 5 2 4 2 5 1 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 4 6 चौको 24 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 1, 7 3 21 1 2 22 सही है। 45 56 माइनस 1 18 नहीं, और 12 8 96 गलत। अगला क्वेश्चन, 10 45, 5 5 9 45। ठीक है 6 3 3 5 नहीं 5 25 हो गया। 10 निम्ना नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर तो ये कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? 10 कप 10 पंचे 50, माइनस 5 6 पंचे 30, माइनस 5 9 पन्ना 45, माइनस 5 40 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? जेड, जेड यहाँ से उठ के यहाँ आया, जेड यहाँ से उठ के यहाँ आया। ठीक यहाँ आया, फिर क्या हुआ? फिर ये एक सिंगल बन गया। अब सिंगल उठ के यहाँ आएगा, अब ये यहाँ बन गया, अब ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, एक नया आइडेंटिफायर। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार। ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। पीछे रहेगा हमेशा इसके साइड में। अगर इसके पीछे रहेगा तो ये वाला जेड नहीं बनेगा, ऐसे ही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 45 25 10। अच्छा डिवाइड देखो, डिवाइड वाला जो है वो कैसे कटेगा? 5 25 5 हो गया। 65 माइनस 45 20, 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 25, 25 से 35 60। लास्ट वाला ऑप्शन काम कर गया। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द फिगर जेड, जेड ओके। यहाँ खाली आएगा नीचे, देख सकते हो ना, ये गया नीचे, ये गया ऊपर। अब सबसे पहले तो ऊपर वाला आएगा एक, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन खत्म हो गया।
सेकंड फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक है। फर्स्ट और थर्ड में डिसिमिलरिटी क्या है, डब्ल्यू की पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, डब्ल्यू की पोजीशन देखो, यहाँ पे जो पोजीशन है, इसमें जो पोजीशन है वो नहीं, जेड माइनस वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड मतलब थर्ड वाला सही हो गया। डब्ल्यू कहाँ, डब्ल्यू नीचे ही तो आएगा, अबे एक पागल है क्या, डब्ल्यू यहीं तो आएगा, सही तो है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू एट द रेट डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू परसेंटेज, क्यू इज द मदर ऑफ टी, ठीक है। टी एंड बाई, टी इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। वाई एट द रेट मतलब वाई इज द सन ऑफ एम, ठीक है। और एम परसेंटेज मतलब एम इज द मदर ऑफ के, ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू रिलेटेड टू के, क्यू फादर्स मदर, फादर्स मदर। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, एक सर्टेन कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें बाई को लिखा है इन 245, बाई मतलब 25, 25 प्लस 5 30 तो 32, और 27 तीन 81, माइनस 32, 11 में से 2 गई 9, 7 में से 3 गई 49, अब 5, 49 इंटू 5 245, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये 15 बार 27, 27 27 और 26, 27 प्लस 26, 26 दूनी 52, 53, 53 इंटू 5 55 या 15 55 25 65, ठीक है। 5, अब ये कितना हो जाएगा, सी, सी मतलब 3, 3 मतलब 24 प्लस 26 प्लस 8 आई 9, 24 26 50 50 59, 59 इंटू 5 करोगे जरा 250 और 250 95 आंसर, 5 45 55 25 तो 295 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वांट में आ जाओ। क्वांट में क्या क्वेश्चन था, 2k sin 45 इंटू कॉस 30, 2k sin 45 इंटू कॉस 30 इंटू कॉट 60, एक सेकंड रुकना, 2k sin 45 की 1/√2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो ये देखो, कॉस 60 की वैल्यू आएगी मेरी √3/2, ठीक है। और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी आई, कॉस 30 की वैल्यू आई √3/2 मतलब 3/4, ठीक है, ये आई। और साइन 45 की 1/2, ठीक है, इंटू कॉस 45 1/√2, ठीक है, ये आया। नीचे क्या आया, नीचे आया साइन 30 की वैल्यू 1/4 हो गई, इंटू सेक जीरो मतलब कॉस जीरो, 1/cos 0 मतलब 1, 1 इंटू टेन स्क्वायर 60 मतलब टेन स्क्वायर 60 डिग्री कितना है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, √3 का स्क्वायर 3, ये है, ठीक, ये होगा। अब देखो इसमें √3 से √3 कर गया, 2 से ये 2 कर गया, तो ये अपना ये तो आ गया के अपने अपॉन में √2, यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा ये, देखो ये इसको लिखोगे, इसको इसको लिखो पूरा, इसको लिखोगे तो 4 दूनी 8, 8√2, 3/8√2 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 3/4, करेक्ट, 3 से 3 चला गया, ये नीचे आएगा, ये आएगा 1/32√2, ठीक, के इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू दिस, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। क्या गलती हो गई यार, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 मतलब 1/4 इंटू सेक जीरो की वैल्यू 1, सेक जीरो की वैल्यू 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, हाँ ठीक है। और टेन 60 √3 का स्क्वायर, तो 3/4 नीचे आया, करेक्ट, हाँ सही है, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, 4, ये 4 है ना, ये 3/4 ये यहाँ से कटा, ये इसको 2 काटा, 2√2 नीचे 1/2√2, के की वैल्यू 1/2 आया, मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस ए इज इक्वल टू 17, तो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉसेक ए माइनस, एक सेकंड ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक एक 1 दे दिया मैंने इधर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 7 कॉसेक ए और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, ये है, 9 दूनी 18, तो सी मान लेता हूँ मैं इसको, सी स्क्वायर प्लस 9 9 9 दूनी 18 ना, 9 दूनी 18, तो 9c
-2c -18 ये है। तो c कॉमन लिया, c प्लस 9 आ गया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, c प्लस 9 आ गया, c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, निगेटिव में तो आएगा नहीं क्योंकि थीटा 0 है, तो c इज इक्वल टू कॉसेक। अब कॉसेक थीटा अगर 2 है तो कॉस साइन थीटा कितना आ गया 1/2, साइन थीटा आ गया 1/2, साइन थीटा 1/2 तो 30 डिग्री आंसर है अगला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, और ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ठीक है। ए डी और ए बी, ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ये 61 है, ए सी बी ये 37 है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आंसर आ गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ डी ए ई, एक सेकंड रुकना, 7 कह रहे हैं, मैं भी क्या कहता 37 और 61 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा 4, 24, 12 आंसर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन देयर एलसीएम इज 2। अच्छा, एलसीएम अगर उसका 2 2 1 को मैं देखते ही समझ गया ना, क्या 13 इंटू 17, 13 इंटू 7 17 3 51, 17 5 22, करेक्ट है। तो अब ए 17 हो गया और बी 13 हो गया, ये 13 हो गया, फाइंड द वैल्यू ए का स्क्वायर कितना 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 17 प्लस 13 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 30 आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 मैन प्लस 5 वुमेन, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है, वाइल 10 मैन प्लस 8 वुमेन, 18 वुमेन सॉरी, 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। तो ये से 2 बार चला गया, ये 12 मैन प्लस 10 वुमेन इज इक्वल टू क्या आएगा 10 मैन प्लस 18 वुमेन, यहाँ से कितना आएगा 2 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन, मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ गया 4:1 का, ठीक है। तो हाउ मैनी मैन शुड ज्वाइन 40 वुमेन, 40 वुमेन मतलब 40 वुमेन प्लस एक्स इंटू 4 ये है, हाँ, इंटू 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 मैन 6 को 24 प्लस 5 29, ठीक, 10 इंटू 4, यहाँ से भी 4 निकाला, यहाँ से भी 10 निकाला, तो 4 से ये भी 4 चला गया, 24 5 29, 29 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो 19 आदमी करना चाहिए काम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द फॉलोइंग बिलो शोज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टू द इन द गिवन फिगर 5 के स्कूल, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द 5 स्कूल, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। ओके, पहले तो सी में देखो कितने 24% है, सी में 24% है, ठीक है, पहले तो एक चीज बता, सी में 24% है, 5 3 8, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 15%, नहीं बॉयज हो जाएंगे 5 3 8 3 24 9%, बॉयज 9% हो गए, बॉयज इन स्कूल सी बॉयज तो तुम्हारे 9% हो गए। अच्छा एक चीज बताओ 3.6 इंटू 9 पॉइंट ना कर दो, 3.6 है 36/10 इंटू 9 कर दो, करेक्ट, ठीक है, 9 6 54, 5 कैरी, ये आएगा ही नहीं 49 डिग्री, 10 डिग्री आएगा नीचे, ये क्या कर रहा है, ये व्हाट इज दिस, एक सेकंड, द बिलो टेबल द रेशियो ऑफ बॉयज इन गिवन 5 स्कूल, ठीक है, व्हाट विद द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे बस इतना से बताओ, बॉयज स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं 24%, उसमें से बॉयज कितने हैं 9%, 9% बॉयज हैं सी में, हाँ, 9% बॉयज के अगर 100% की वैल्यू 3.6 इंटू 9 कर दो, 9 6 54, 5 कैरी, 9 6 54, 5 कैरी 9 27, 27 5 32, 27 में 32, 32.4 आंसर आना चाहिए कुल मिला के, मोटी मोटी बात इतनी है। अब 32.4 कैसे आएगा, ये तो फिर कुछ अलग आ रहा है, इसके बाद में करेंगे, मान को रिव्यू कर दो। बिना सर्किल का सेंटर हो, क्योंकि अभी क्लिक करेगा नहीं फालतू, उसमें समय अलॉट कर देंगे। यहाँ सर्किल विद सेंटर ओ, ए सी एंड बी डी आर 2 पॉइंट्स, in a circle with center O, AC and BD are two chord AC and BD meet at AC और BD meet at E, ठीक है, when produced if AB is the diameter, अबे वही कल वाला सवाल, कल एक बार मॉक में आए थे ये, ए बी डी सी, ए सी
BD, correct. O is the center. ACBD, ACBDE, ये E हो गया, ठीक है. Made produced if AB is the diameter and angle AEB अगर तुम्हें दे रखा है 68 डिग्री, ठीक है. तो फाइंड द एंगल ऑफ DOC का वैल्यू बताओ कितना आएगा. ओके. ये कल क्वेश्चन किया था कैसे किया था. कॉर्ड AC एंड BD मीट एट पॉइंट E. देखो ये 90 डिग्री बना देगा इस पे. हाँ, एक सेकेंड. 68 बाद में करेंगे इसको. The average at 25 number is 35, while the average at 21 of these number first 25 है और 21 of these number is 33. तो कितना कम है. माइनस का 42 आ गया, ठीक है. एंड द रिमेनिंग 4 नंबर्स आर इक्वल. माइनस का 42, ठीक है. तो कितना 10.5 इसमें ऐड कर दो ज़्यादा सब में. तो 35 10 45 45.5 आंसर होगा. Add the each of the 4 number 45.5. A train completed a journey of 2100 kilometers in a train completed a journey of 2100 kilometers in completed 14 hours. 14 hours में कब. 3/7 मतलब 7 × 21 900 ऑफ द जर्नी इज कम्प्लीटेड बाई 9, तो 10 घंटे लगे. तो बाकी कितना 4. 7 × 21 1200 को तुमने 4 घंटे में किया तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया था. आंसर अगला क्वेश्चन क्या है. ABC इन्वेस्टेड. ए है, एक B है और एक C आदमी है, ठीक है. इसने 50 के डाले, इसने 46 के डाले और इसने 55 के डाले, ठीक है. फॉर अ बिजनेस एट द स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर. आफ्टर 6 मंथ्स फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ ईयर ए एडेड 4000. 6 महीने तक इसने ये रखा और फिर 4000 और डाल दिए तो 54 के हो गए, ठीक है. वाइल सी विड्रॉ 10,000. तो सी ने क्या किया 6 महीने तक ये रखे और सी ने 10,000 निकाल लिए तो 45 के हो गए इसके, ठीक है. हाँ. और वाइल सी विड्रॉ तो मैं 12 1 साल के लिए मान लेता हूँ. तो 6 महीने, ये 12, ये भी 6 6 6 6 सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 104. 104 आ गया, ठीक. ये 104 आ गया. ये 46 2 92 आ गया, ठीक है. ये 6 6 चला गया, 5 45 100 आ गया ये. फिर एक बार काट दो. 4 से कट जाएगा ना. 23 चौको 52. हाँ, तो 4 से कटा 28 चौको 104. 26 चौको सॉरी 26 अट्ठे 26 चौको 4 दूनी 8 6 चौको 24, ठीक. 26 4 23 चौको 92 और 4 25 ये आ गया. 25 25 50 1 51 51 74 60 6 3 9 5 14 6 74. अब 74 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें. 213120 1106560 37. इसको इससे काटो. 106 5 10656 ये है. और इसको 37 से काटो जरा. 37 तियाँ 111 हो जाएगा. ये तो नहीं जाएगा. 37 दूनी 74. 6 में से 4 गई 2 32 325. अब 37 निम्न में 9 9 3 27 9 से 63 27 से 33 3 बार 8 बार जाएगा. 8 बार 8 बार 8 7 56 5 कैरी 8 24 24 और 5 29 29 आ गया. पर 29 आ गया तो कितना 24 25 4 29 296. फिर 88 बार चला जाएगा. 28880 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू. तो किसकी पूछी है. सी की शेयर की. सी की वैल्यू 25 आ जाएगी. 25 0 25 25 220 20 कैरी 25 अट्ठे 200 220 0 22 कैरी 25 दूनी 50 और 22 72. 72,000 आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूथ्स, ठीक है.
अरे यार किसका कॉल आ रहा है? हेलो, आधे घंटे में कर रहे हैं यार, मॉक दे रहे हेलो। मॉक दे रहे हैं, आधे घंटे में कॉल कर रहे ओके। हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूथ इज एम्प्लॉयड इन द स्टेट ए? देखो यूथ और एम्प्लॉयड यूथ तो कितना, 10.5 1050 डिवाइडेड बाई 12, 3 चौको 12, 3 3 9 35, 350, ये कितना आ गया? 175, 175 मतलब 87.5, 87.5 इज यूथ इज 87.5 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन सैलरी बाय डिक्रीज बाय 20%, पहले 100 थी मान लो, अब 80 आ गई, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, तो 120 हो जाएगी अब, फिर ठीक है। एंड देन अगेन डिक्रीज बाई, तो 84 हो जाएगी अब, ठीक है। तो हाउ मच परसेंट डज ही लॉस और गेन? 16% इसको गेन लॉस हो गया, आंसर 16% लॉस हो गया। अब अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 10% स्टिल गेन्स, तो ऑब्वियसली बात है 90% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 135% ऑफ सी पी। तो एम पी अपन सी पी का रेशियो क्या आ जाएगा? 9 से ये 10 बार गया, और 9 से ये कितने बार गया? 9 10 और 9 ये 15, 3:2 का रेशियो आ गया, ठीक। एम पी टू सी पी का। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट 1560 टू द डीलर, अगर एक कोई 1560 है, मतलब दो दो सत्ते 14, 780 रुपये की एक चीज़ है, ठीक है। तो 1560 में 780 डिवाइड जीरो, 8 से 14 बन करी 15 7 22, एक 23, 2340, 2340 को उसको मार्क प्राइस पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सोलिड स्पेयर ऑफ ईच ऑफ दस एंड दस रेडियस आर मेड अप ऑफ अ मेडिकल सॉलिड कौन? तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितनी है? बेस रेडियस कितना है? 35 स्क्वायर, 35 इंटू 35, और हाइट कितनी है तुम्हारी? हाइट 140 सेंटीमीटर। और इसमें कितना है? इसका क्या सॉलिड स्फीयर पूछा ना, तो 4 पाई 3 पाई आर क्यूब कितना है तुम्हारा? 35/2, 35/8, 35 इंटू 35 अपॉन 8, ये आया करेक्ट। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, करेक्ट। 35 से 35 गए, तो 35 दूनी 70 दूनी 4 टाइम्स ये गया, ठीक। 4 से ये 4 गया, ठीक है। 8, 8 बनेंगे आंसर। अगला 8 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 आ गया। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर बाय 40 स्टूडेंट, ठीक है, इन a test of 30 marks. A student has to score a minimum 10 marks to pass. The student who score marks more than 20 marks, 20 marks से ज़्यादा किसने किया है? देखा एक सेकंड, 20 मार्क्स से ज़्यादा, उसको मोर देन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स से ज़्यादा 10 और 5 15 लोगों ने किया है, ठीक है। और व्हाट परसेंट ऑफ द, अब एक चीज़ बताओ, 15 ये है, 40 तो 25 बचे होंगे, और मोर देन 20 मार्क्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 20 मार्क्स? तो टोटल 40 थे, तो 20 से 25, तो ये 15/25, 5 3 15 55 25 मतलब 60% है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन का 8 k³ अपॉन दिस, मैं k क्यूब का x मान लेता हूँ, तो 8x² माइनस 112x और माइनस का 8, ये दे रखा है 8×8 = 64, नहीं ये भी नहीं, तो ये तो है नहीं रहा। तो फिर तो एक चीज करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, इन्होंने k प्लस, मैं k क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, k क्यूब से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 8k³ माइनस 8/k³ और इक्वल टू 112, ये दे रखा है। 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार? k³ माइनस 1/k³ इक्वल टू 8 एकम 8, 8 चौको 32, 14, 14 8 112, 14 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, k³ माइनस 1/k³ आ गया, हाँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें मुझे k³ माइनस 1/k³ आ गया। अब मुझे यहाँ से k-1 निकालना पड़ेगा, तो k-1/k इक्वल टू, अगर x है तो ये क्या आएगा? x² माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स, ये x² माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 14 दे रखा है, तो 14 कैसे आएगा? प्लस 14, 9 9 6 15, नहीं 9, 3 का स्क्वायर इंटू 3, एक सेकंड में कुछ कर, इसको बाद में करूंगा, मार्क फॉर भी कर देते हैं। अगला एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस इंटू दिस, तो इन सबको ऐड करो, 8 5 13 13 4 17x,
8 5 13, 13 4 17x और माइनस का कितना होगा, ये टोटल 26 और 22 48, 48 और 58, माइनस का 58 इक्वल टू 180, 58 8 18 5 23 238, 17 एकम 17, 17 4 68, 14 एक्स की वैल्यू 14 आ गई आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आदित्य सेल टू रेफ्रिजरेटर फॉर 64,000 ऑन द फर्स्ट ही गेन्स 28%, मतलब उसको 100 की चीज थी 28%, क्या 28% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4 7 28, 4 25, अगर 25 की चीज थी उसने 32 की बेची, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगला, एंड ऑन द सेकंड ही लॉसेस 11/11%, 11/11 मतलब 1/9, मतलब 9 की चीज थी तो उसने 8 की बेची, करेक्ट। अच्छा, फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंटेज, अब अच्छी, तो 32 की चीज को 64,000 में बेचा तो यहाँ से कितना आया 2,000, तो ये 50,000 की मतलब एक रेफ्रिजरेटर था, ठीक है। अभी 8 की चीज 8,000 में बेची है, 8,000, करेक्ट, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 72,000 ये हो गया। ये कितने, 7 5 12, 1,22,000, 1,22,000 जो रुपए थे तुम्हारे, और तुम्हें यहाँ कितना मिला 1,28,000, तुम्हें 6,000 का प्रॉफिट हो गया, 6,000 से ये गया ये 61 पे तुम्हें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 61 पे का तुम्हें 3 रुपए, 5% से थोड़ा सा कम, लमसम 5%, नियरेस्ट टू 5%, 5% तुम्हें गेन हुआ है, गेन ओवरऑल। अगला क्वेश्चन, इफ ए 8a प्लस, क्या है ये लिखा गया है 8a 5146 b इज डिविजिबल बाई 99, तो एक चीज बताओ, 4 5 9 9 8 17, 17 प्लस बी माइनस ये कितना 6 7 7 और 7 प्लस ए, ठीक, ये होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको तुम करोगे तो 17 प्लस बी माइनस 7 माइनस ए, तो ये हो गया, ये यहाँ से आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 10, बी माइनस ए इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। बी माइनस ए इज इक्वल टू 10, ये होना चाहिए, ठीक है। और 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 तो हो गया, यहाँ तक तो कट गया, तो ए प्लस बी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं ए प्लस बी को पहले 3 ले दूँ, ए प्लस बी को 3 ले आओगे तो फिर ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, तो ए प्लस बी को 6 ले आओ, ए प्लस बी को 6 ले आओगे तो 8 आ जाएगा, 8 8 और माइनस का 2, तो वाइट 8 और माइनस नहीं, इन दोनों का ऐड करो तो कितना आएगा 2 बी, बी की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई, 8 माइनस 2 6, ये नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या करें, एक और बस, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 9 है ना, अरे 8 5 13, 8 और 5 13, 8 प्लस 5 13, करेक्ट, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, यहाँ तक तो सही था, 6 प्लस 3, तो ए प्लस बी 3 आना चाहिए, ए प्लस बी अगर या तो 3 आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस 6 इजिकल टू प्लस 6 इजिकल टू 9, तो ए प्लस बी या तो 3 आएगा या फिर 18 माइनस 6 की 12, या फिर 12 आना चाहिए, 12 10 22, तो 11, 11 माइनस 10, हाँ तो 11, लेकिन 11 आएगा नहीं तो 3 ही रखना पड़ेगा मुझे, 6, 9 में से 6 गए 3, तो ए प्लस बी 3 13, 10 3 13, 7.5, ये तो हो नहीं सकता यार, फिर क्या दिक्कत हो रही है, फिर तो मुझे ये करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 11 के बराबर करो इसको, यहाँ से कितना आएगा 10 प्लस का 10, बी माइनस ए इक्वल टू प्लस का 10 इंटू 11, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कितना आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, यहाँ से आएगा 2 4 4, यहाँ से आएगा 2 और 1 4, आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू 1, बी स्क्वायर 4 और एक ए इंटू 1, आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सर्किल ए बी सी डी, एक सर्किल है कोई ए बी सी डी, इन सर्किल ए बी सी डी इज साइक्लिक ट्रायोड, ठीक है, ए बी सी डी एंड ए सी, ठीक है, बस ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली एट पी, ठीक है, इस पॉइंट पी पे ये परपेंडिकुलरली है, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल जो है तुम्हारा ये 48 है, अगर ये 48 तो ये भी 48, 48 48 96, तो ये 84, करेक्ट, ये 84, तो ये 196, ये 96 हो गया, ठीक है।
देन मेजर ऑफ एंगल सी बी पी ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा। देखो ऑब्वियस बात है 48, तो ये 42 आएगा। ठीक है 48 प्लस 42, 42 आ गया। अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। एक्स तो वाई को 1 मान लेता हूँ, वाई को 1, जेड को 1 और एक्स को 2, करेक्ट। तो 8/27 तो नीचे लिखा ही रहने दो। और माइनस माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 1/2 इंटू 2×4 -1/4 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4/2 वाई जेड मतलब 2 आंसर, ठीक है। माइनस जेड स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये माइनस का 1/4 माइनस का ये 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 1/2 आया। 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। 8/27 इंटू 3/2, 2 चौको 8, 3×27, 4/9 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड द टावर इज 70√3, तो 70√3 तो उनके बीच में 70 रेफरेंस है, ठीक है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप नीडेड टू टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट P। ये 70 दूनी 140 होगा, आंसर 140। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, वैल्यू ऑफ 2.7, ठीक है। इसको पहले अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। 2/7 अच्छे से लिखो इसको, 3 - 3/8, क्योंकि ये सवाल एक बार में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 इसको लिख सकता हूँ। डिवाइड, डिवाइड हो गया। ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 दूनी 3 2 3 6 1 7, 7 और 4 28, करेक्ट। 7 चौको 28 इंटू 28 प्लस, अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करो, 14 और 1 17, 57/40 माइनस 3 प्लस 5 और 1 6/5 प्लस का 6/5 प्लस का 3/8, ये होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से समझ गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये 8 15, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40 और 57 और 5 65, 1 72/40 और प्लस का 8 से 48 अपॉन 40 माइनस 8 दिए 24 अपॉन नहीं 40 दिए माइनस का 120 अपॉन 40, ये हो गया। 8 2 7 4 11, 1 12, 120, तो ये तो जीरो ही हो गया पूरा, ये हटा दो। ये कितना गया, 8 दूनी 16 माइनस 21 अपॉन 56, और ये माइनस आ ही रहा है। ये कितना आएगा, 9 6 54 अपॉन 28 इंटू 4 मतलब 14 14 8 112, ये आया, ठीक। तो ये यहाँ से कितना आया, माइनस का 10, माइनस नहीं 16 5 21 माइनस का 10 अपॉन 112 और माइनस का 55, तो टोटल हो गया ये माइनस का 64 अपॉन 112, दैट इज 8 64 माइनस का 8 अपॉन 8 एकम 8 14 8 112, ठीक 7 माइनस का 4/7 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, a certain sum on simple interest becomes 90,000 in 5 साल और एंड रुपीज इन द नेक्स्ट ईयर। तो अच्छा, इनके इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 18,000। 18,000 अगर 3 साल का है तो 1 साल का 6,000, 6 पंचे 30, मतलब 60,000 रुपये तुम्हारी वो थी। अब 60,000 रुपये पे तुम्हारी 3,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। 3/1/20 5% था। अब बोल रहा है रेट हेडविन 2% और 5% की जगह 7% हो जाए, तो इन हाउ मैनी ईयर्स वुड द सिम हैव बीन डबल्ड। सम तो कब कैसे डबल होगा, 7%, 14 7 98, सम डबल कैसे होगा जब 100% मिल जाए, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड हैड द सम हैव बीन डबल्ड, अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 90,000 इन 5 साल, ठीक है। एंड 1,08,000 इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, एक होता है 1,08,000 में से इसको हटाऊंगा तो 18,000 आ गया 3 साल का, तो 3 साल का तो 1 साल का 6,000, 6 पंजे 30,000 मतलब 60,000 था। 60,000 का 3, 60,000 का 3,000 कितना परसेंट है, 5%, करेक्ट। 5% हैड बीन 2% मोर, तो 7%, 7% मतलब 7% मतलब and how many would have some have been doubled। साधारण ब्याज पर, ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक कितना, 5 3 8 साल में, 8 साल में 56%,
been doubled. In how many years would have if the rate of interest had been 2% more, then in how many years would had some have been two doubled? अच्छा 8 से 24 एक 25 7 से जाना चाहिए 2% कम होना चाहिए क्या 3%? 3% 5 साल में कितना आया होगा यार 25 5% है 25 अरे यार मैं भी तो गलती कर रहा हूँ ना हाँ ये है ना कितना डिफरेंस देखो एक इंटरेस्ट कितना है 6,000 56 30 30 हट गया 60,000 60,000 का 10% टोटल टोटल 10% अब 12% से 100 को डिवाइड करो कितना आएगा 3 चौको 12 3 25 25 8 या 24 है 25 25/3 हाँ ये आएगा आंसर क्या कर रहा हूँ मैं अभी द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द रिसिपिएंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस फर्म ओवर 5 years ठीक है रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली फाइंड द एवरेज गेन इन लैख फ्रॉम 2016 से लेके 2020 के बीच में अच्छा 54 - 4 एक 3 आया यहाँ से 4 यहाँ से आया 5 यहाँ से आया 2 यहाँ से आया और ये कितना आया 6 आया और 4 3 7 7 5 12 12 तो 14 14 6 20 20 आंसर अगला एवरेज पूछा क्या एवरेज पूछा है क्या 4 आया 20 5 4 ये आ गया अब आ जा 16 नंबर सवाल पे इसमें क्या था इसमें देखो इसमें क्या निकाला था हमने इसमें निकाला था के क्यूब माइनस 1/के क्यूब इज इक्वल टू 14 करेक्ट हाँ यही है हाँ अच्छा तो के -1/के कितनी वैल्यू कितनी आ गई 2 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 और प्लस 6 14 ठीक है तो के माइनस के की वैल्यू 2 आ गई अब यहाँ से मुझे के प्लस वन तो 4 2 का स्क्वायर 4 आया 4 और ये यहाँ पे कितना करना पड़ेगा प्लस का 4 4 और 8 2√2 आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन ये तो हो गया अगला क्वेश्चन क्या है ये वाला given pie chart study the pie chart and table and answer the below table shows the ratio of girls and boys in the given 5 schools ठीक है what will be the measure of the sector angle corresponding to the number of boys in schools this oh ओके इतना 5/3 करेक्ट सी 5 और 3 8 अच्छा 8 अगर तुम्हारा 360 के बराबर है तो तुम्हारा 3 कितना होगा ये पूछा है ना 4 दूनी 8 49 कहाँ से आ रहा है यार सी का ही तो पूछा है किसका पूछा है सी का ही तो पूछा है what will the measure of sector angle corresponding to the number of boys in the school ठीक है तो 15 15 30 18 और 24 42 और ये 30 100 है 100% है अभी 100% की वैल्यू अगर तुम्हें इस साइड से 1% की वैल्यू कितनी 3.6 करेक्ट 1% की वैल्यू 3 सी की वैल्यू कितनी 5 और 3 8 8 8 3 24 मतलब 9% करेक्ट समझ नहीं आ रहा ये झप नहीं रहा यार ये सवाल इसमें क्या है ना सर्किल विद द सेंटर हो जनरल इंटेलिजेंस में कुछ छोड़ा है क्या एक सवाल छोड़ा है ना ये वाला ये ठीक है पहले इसको करते हैं ये वाला 7 नंबर सवाल करते हैं ना इन सर्किल विद सेंटर हो तो इन्होंने क्या बोला ए बी इज द डायमीटर ए बी को अगर 100 मीटर माना मैंने ठीक है ए बी इज द डायमीटर इन्होंने क्या किया ए सी एंड बी डी आर पॉइंट्स ए सी और बी डी ठीक है बी डी मीट एट पॉइंट ई व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ ए बी इज द डायमीटर ठीक है तो ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है ये 90 ठीक है एंगल ए ई बी ये वाला 68 डिग्री है अच्छा एक चीज बताओ हम्म ये 90 बन गया तो ये 90 90
ये वाला कितना 180 माइनस 68 कितना आएगा 112 56 या 112 अच्छा ये आया 112 अगर ये 112 है तो ये 68 इसका बेस लो होता है ना 90 माइनस 34 90 50 56 ये DOC पूछा है यार DOC ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा नहीं मालूम था छोड़ो किया है लेकिन वही क्लिक नहीं हो रहा अभी दिमाग में कितने होंगे मेरे हिसाब से 25 30 23 23 145 48 के आसपास नंबर होने चाहिए मेरे हिसाब से 150 के आसपास 138.5 नंबर कम है यार इसमें कम रहेगा यार इसमें दो गलत हो गए ओके 7 2 9 9 5 14 15 सवाल गलत हो गए अच्छा 73 सवाल सही है 37.5 और 38 38 और 4 42 एक 52 इन दोनों को मिला के 52 नंबर आए हैं आज रीजनिंग कम रहेगा ना इनकरेक्ट देखो पहले कौन से गलत इनकरेक्ट हो गया रीजनिंग में इसमें क्या है भाई आई का अपोजिट आर इसका अपोजिट इसका अपोजिट ठीक इसमें प्रूफ क्या किया 13 7 20 19 और 19 माइनस 6 13 13 24 में लग ही रहा था इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है देखा अभी मार्क शीट रिव्यू किया था लेकिन क्या बोल रहा ठीक है एक सवाल इसमें गलत हो गया ठीक है क्वांट में कौन सा गलत हो गए तो इन अ सर्किल दिस अगर एक सर्किल है ठीक है इस वाले सवाल में गलत कैसे हो गया यार फाइंड द मेजर ऑफ CVP ठीक ये मैंने फिगर बनाया सर्किल ABCD is directly related and AC and BD intersect at 90 degree perpendicularly at P ठीक है ये वाला है if AB is equal to BC AB is equal to AC है मेरे भाई गलत हो गया ना यहाँ पे फिर तो गलत हो गया ना गलत हो गया तभी गलत हो गया 48 अगर ये दे रखा है तो कितना 152 नहीं 142 नहीं 142 132 मतलब 132 मतलब 66 66 ये हो जाता फिर और 66 ये हो जाता और ये 66 ये 66 ये 66 हो जाता 66 में से कितना गया 80 90 में से कितना 40 70 70 70 20 24 आंसर आ जाता है गलत गलत फिगर बना दिया आंसर गलत हो गया इसमें क्या था इसको माइनस किया अरे इसका पावर लेना था तो 2/3 आएगा ना पावर नहीं देखा ठीक है एक दो दो सवाल ये दो सवाल फालतू में गलत हो गए यार 5 नंबर ये बढ़ जाते हैं 5 7.5 नंबर बढ़ जाते हैं यार 7.5 नंबर समझ रहे हो 7.5 नंबर बहुत हो जाते हैं 2.5 नंबर यहाँ बढ़ जाते हैं 7.5 38 7 पैंतालीस 46 नंबर तो सीधे सीधे उड़ते हैं यार और अनअटेम्प्टेड कौन सा था जनरल इंटेलिजेंस में पांडा क्या करता है पांडा ईट्स बम्बू तो कोला ईट्स यूकेलिप्टस ठीक है कोला के बारे में नहीं मालूम था ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं किया कोई अच्छी बात नहीं गलती गलती हो जाता अच्छा ये आ जाओ स्टडी द पाई चार्ट इसमें क्या बोल रहा है इन्होंने बोला क्या था बस ये बताओ मुझे ठीक 28 स्टूडेंट लेट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल द हाँ तो ये 28 हो गया ये 28 ये 15 ये 24 ये ठीक है 15 ये 24 ये 18 ये 15 ठीक है गर्ल्स और बॉयज तो गर्ल्स कितने आ गए इसमें कितने इसमें 15 और 9 आ गया टोटल बॉयज इन ऑल द स्कूल इज 49 अच्छा ऑल द बॉयज का बोला था क्या व्हाट इज मेजर ऑफ द सेक्टर एंड करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी करस्पॉन्डिंग टू ऑल बॉयज बोलना चाहिए था ना ये क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है 49 पूरे आ जाएंगे उसमें 9/54 सीधा निकाला था फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें कैसे था ये निकला नहीं निकला अच्छा एक चीज बताओ अब ये रेडियस एक्स एक्स ये भी एक्स ये क्या है इसको क्या माना इन्होंने इनको वाई माना ठीक है अगर ये वाई आ गया ये वाई आ गया एक्स ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो एंगल ओ सी डी ठीक है प्लस एंगल ODC ठीक है ODC प्लस ओ सी डी एंगल OCD ठीक है प्लस एंगल ODC ठीक है OCD एंगल OCD ये वाला प्लस 180 आएगा
180 माइनस थीटा आ गया, इन दोनों को मिलाकर, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये रेडियस हो गई, ठीक है, ये रेडियस हो गई तो ये गलत हो गई, ठीक है। यहाँ से आ गया 190 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक। ये एक क्वेश्चन बन गई इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। इस वाले में ये आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 112 आ गई, हाँ ठीक है, ये भी आ गया। फिर क्या हो गया, एज ए बी सी डी बी, अरे ओके, साइकिल कोऑर्डिनेटर लगा दिया यहाँ से इन्होंने। साइकिल कोऑर्डिनेटर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 90 डी सी ए, बताइए तुम्हें, डी सी ए। ए बी सी एज ए बी सी ए बी डी प्लस ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू दिस। तो ए सी डी की वैल्यू तुमने निकाल ही ली थी अभी, ए सी डी की यहाँ निकाली तो थी, ए सी डी ओ सी डी ओ सी डी प्लस एक और एक्स होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस एक सेकंड ना, मुझे यहाँ समझ नहीं आया, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ से इनने ये वाली निकाली, इन दोनों की सम की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये आया 95, ठीक है, ओ सी डी यहाँ तक की माइनस थीटा बाई 2, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने बोला कि ये एक वो है, तो वाई प्लस एक्स प्लस 90/2, ठीक है। वाई प्लस एक्स की वैल्यू हमें पता ही थी 112, 112 प्लस 90, 112 यहाँ चला गया, कितना आएगा, 68, 68 आया, 68 आया, 90, 90 68 32 70 22 44, 44 44, ठीक है। तो ये वाला सवाल एक, ये दो, ठीक है, ठीक है। ओवरव्यू, इसमें क्या था, इसमें तो देखते हैं कितनी रैंक आती है, इसमें भी कितनी आ रही है, अभी 1747 रैंक है ना, 1871, अभी कितना एक, इसको बढ़ाते हैं, 100 बढ़ाते हैं, इसको 145 तक लेके जाते हैं, 145 पे इसकी रैंक 842 हो जाती है लमसम, तब भी 80%, मतलब इस वाले मॉक में 150 के ऊपर नंबर लाने चाहिए थे, 150, हाँ 150 के ऊपर नंबर होने चाहिए थे, तो तुम एकदम परफेक्ट 190 परसेंटाइल में आ जाते। कोई नहीं, तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए और बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया है। और अगर आपका पास मॉक टेस्ट का मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई कीजिए और बताइए आपने कितने 25 में से मैथ्स में सवाल कर लिए थे, और क्या बोलते हैं, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई, वो क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। और कुछ नहीं, और प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए, एग्ज़ाम पास में है। और जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए, लेकिन पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।